Namaste, namaste, namaste. I am Nancy Raghuvanshi. Welcome you all to this brand new video. This is something जो मैं काफी टाइम से बनाने का सोच रही थी, but again बीच में I just got a request, so I had to fulfill your guys' request. And I've uploaded that video, not got that good response on that one, but I don't know why YouTube is doing this to me. एक वीडियो मेरी अच्छी जाती है, एक वीडियो मेरी खराब जाती है. Like this is going on like crazy. I guess this video has potential, so it might reach the right audience जिनको इस वीडियो की असल में जरूरत होगी. Talking about today's video, this is something I wish someone जो मेरी कोई बड़ी बहन, कोई बड़े भैया, कोई मुझे आके बताते, ये चीजें नॉर्मल होती है, how to overcome this fear और all of this about. इस वीडियो में I've tried to give out a detailed analysis on what I mean because आधी चीज तो टाइटल में पढ़ के समझ में ही नहीं आई होगी कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या, and I will break down all of the steps and how you can overcome this fear and how you can be cringe because I feel like I'm cringe for a lot of people, so you can be cringe too, but there's a lot in this video, so I hope you will enjoy this. Again हर वीडियो की परंपरा रही है कि हम देंगे लाइव अपडेट. Nothing has been so much exciting in this week. I feel like मैंने ये वीक बहुत ज्यादा पढ़ाई में निकाल दिया and that's why I'm just recording this video just one day before uploading it, so I have to just do everything quickly, thumbnail editing फास्ट पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं जब पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मेरा मन करता है कि सिर्फ मैं पढ़ाई करती रहूँ, फोकसिंग ऑन माई गोल एक्सेट्रा. जब मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, व्हेन आई मेक वीडियोस, आई फील लाइक दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. आई एम इन अ वेरी मच डिलेमा राइट नाउ, बट I guess let's hope for the best in future, but nothing has exciting in this week. I feel like pretty normal. I studied, I made my plans, to-do list, month has just started, so I've just made my whole thing, what I want to do in this month and everything, and I feel like this month is going to be hell lot of productive because I have a lot to cover in studies and a lot to upload on this channel. So I hope you guys will stay connected. And now let's move on to the video. Girl, nasty, I've been a nasty girl. Being cringe, to feel embarrassed या uncool. I saw this one reel on Instagram, जैसे पीछे बैकग्राउंड में कुछ मोशन चल रहा है, कुछ नॉर्मल रेगुलर क्लिप चल रही है ना, आगे there's this text. I guess that was a TikTok re-uploaded on Instagram reels. But since we don't use TikTok, that is the only source of us to get to know what is going on in the world. So I just was scrolling on my Instagram and I just saw this reel which says, cringe is a word made by the uncool kids to make the cool kids feel bad about themselves. And when I read this, it blew my mind because this was something जो मैंने कभी सोचा नहीं था. And that was very true. मतलब कुछ सेट ऑफ ग्रुप जिन्हें लगने लगा कि ये बच्चे हमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं या ये बच्चे बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं या ये बच्चे बहुत कूल चीजें कर रहे हैं, तो वो अनकूल बच्चों ने एक टर्म बना दिया टू बॉयकॉट द पीपल जो ये सब ऐसी चीजें कर रहे हैं. Cringe is very much related to the triggers of shame, triggers of regret. But I guess you don't know, before this channel, I even had a channel on YouTube that was basically like me making study vlogs, some random, baking cakes, pizzas. There was just a lot on that channel. All the videos are private now, but when I had that channel, मतलब मैं इसको इतना ज्यादा प्रमोट करती थी जिसकी कोई हद नहीं है. कोई भी नई वीडियो आती थी, इवन आई एम इन द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, या मैंने आज कुछ शूट किया या फिर मैंने आज कुछ बनाया या फिर मैंने आज कुछ भी वीडियो से रिलेटेड किया, आई यूज्ड टू लिटरली पोस्ट WhatsApp status about it. I used to post it on my Instagram कि आज editing चल रही है, कि आज ये चल रहा है, कि आज वो चल रहा है. And I feel like that is something जो अभी मेरे अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो करूँ because of the fear of being called cringe. Before starting this YouTube channel, मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, this is something which I have in my mind and मुझे YouTube channel start करना है. What do you think about it? And then I told her, I don't know why, I just feel not good about that people will get to know about my YouTube channel, my friends, my schoolmates, my neighbors, everyone, and they'll be like, oh my god, she's uploading and that must be so cringe. That was the exact statement I will tell you जो मैंने उसने मुझे दिया. She was like, the Anaya you were in lockdown, she didn't care about who thought she was cringe or not. मतलब मैं इस हद तक प्रमोशन करती थी कि मेरे जो आप व्हाट्सएप पे बायो लिखते हैं ना कि ओके सम कि हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, बिजी एट वर्क, एट स्कूल, व्हाटएवर, मैंने उस बायो में लिखा हुआ आई हैव अ यूट्यूब चैनल नेम्ड अनाया सिंह, प्लीज गो सब्सक्राइब इट. एंड आई यूज्ड टू शेयर लिंक्स टू एवरी पर्सन. लाइक मैंने ब्रॉडकास्ट बना रखा था व्हाट्सएप पे. आई यूज्ड टू शेयर द डिटेल्स, द लिंक्स टू देम. मतलब बहुत तगड़ी मैं प्रमोशन कर रही थी अपने चैनल का खुद से ही.
एंड लॉकडाउन के टाइम पे क्या था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो बेसिकली आपके क्लास ग्रुप्स होते हैं, आपके सब्जेक्ट ग्रुप्स होते हैं, आपका क्लास टीचर का अलग ग्रुप होता है। सो इट वाज लाइक कि मतलब सबके पास आपके नंबर का एक्सेस है। एंड उस टाइम पे जब मुझे फील नहीं हुआ, उस टाइम पे जब मुझे ऐसा शेमफुल फील नहीं हुआ कि कोई मेरा यूट्यूब चैनल देख लेगा तो मुझे क्या होना चाहिए। एंड आई फील कि अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए अपनी चीजों को लेकर के, एंड आई एम वेरी ओके बीइंग कूल। अभी मुझे पता है अगर मेरे किसी स्कूलमेट को, क्लासमेट को, किसी को भी मतलब जो मुझे जानता है, उसको चैनल के बारे में पता चलता है, दे माइट फील लाइक what the hell she's doing, this is so bad, this is so cringe, but I have to start from somewhere, right? So I guess this is my initial point, like you have a ray, there's a starting point and the ray goes on and on till infinity. I feel like this is my starting point of the ray. एंड ऑनेस्टली क्रिंज इज जस्ट नॉट अबाउट मेकिंग अ यूट्यूब चैनल। क्रिंज कैन बी कि आपको असेंबली में स्पीच देनी है एंड यू फील लाइक ओके, माय क्लासमेट्स आर गोना जज मी। कोई स्कूल में कंपटीशन है, इट्स डांसिंग, सिंगिंग, एंड इफ यू फील लाइक अगेन माय क्लासमेट्स, द पीपल अराउंड मी आर गोना थिंक आई एम क्रिंज। और ये बहुत बार होता है और बहुत ज्यादा होता है, एंड इट इज मोर फ्रीक्वेंट देन वी थिंक। हम कितनी सारी चीजें करना छोड़ देते जस्ट बिकॉज वी थिंक व्हाट द अदर पर्सन विल थिंक ऑफ अस। लाइक that person has not even lived one single second of our life, doesn't know anything about us, and still हम उसके थॉट्स को इतना कंसिडरेशन देते हैं जितना शायद हम अपने आप को खुद को नहीं देते। अब मैंने इस बॉडी में 17 साल गुजारे हैं, तो मुझे अपने बारे में अच्छा बुरा सब पता है। आई नो आई एम नॉट दैट मेच्योर कि मैं अभी अपने फाइनेंसेस हैंडल कर सकूं, या मैं कोई घर ले सकूं, या मैं कोई गाड़ी ले सकूं, बट आई नो व्हाट्स गुड फॉर मी एंड व्हाट्स नॉट गुड फॉर मी और व्हाट्स बैड फॉर मी। कितनी बार ऐसा होता है जब क्लासेस में इवन प्रेजेंटेशंस देने की बारी आती है। अभी तो मैं काफी टाइम से क्लास ही नहीं जा रही हूँ, स्कूल ही नहीं जा रही, तो आई डोंट नो मच, बट 10th 11th क्लास में आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे टू मेक ग्रुप प्रेजेंटेशन विद पीपल। आपको 5 लोगों को उठाना है एंड यू हैव द चैप्टर, नाउ यू ऑल 4-5 people have to explain the chapter to the class, and I feel like I was very upfront for those kind of things. Being an extrovert, this is my favorite hobby to give presentations, but मेरे जो टीम मेंबर्स होते थे, जो मेरे बाकी लोग होते हैं, I was very particular about what kind of people I'm getting into my team. तो वो लोग बहुत हेसिटेट करते थे। आई नो दैट दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट, मुझे पता है कि ये बच्चा अच्छे मार्क्स ला, ही नोज एवरीथिंग, इसके पास नॉलेज है, इसको ही हैज दिस कमांड ऑन द सब्जेक्ट, बट अगेन स्पीकिंग प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बोलने के लिए। सो लिटरली मुझे बैठ के काउंसलिंग देनी पड़ती थी, दैट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसे होता है वैसे होता है, जस्ट गो विद इट। हम कितनी बार ऐसी चीजें करने से अपने आप को रोक देते हैं जो शायद हमें हेल्पफुल लगे, जो शायद हमारे फ्यूचर के लिए हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, जो शायद हमारा बेनिफिशियल भी नहीं हो तो यार हमें ओवरऑल हमें न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू एडवेंचर्स कराए, और हम वो चीजें करना छोड़ देते हैं, वो चीजें ट्राई ही नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज वी थिंक कि कोई और हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। विद दैट बीइंग सेड, वी हैव द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। दिस इज वेरी ट्रू। लाइक आधी चीजें हम करते नहीं है एंड वी फील लाइक ओके, पीपल विल कॉल अस क्रिंज, सो व्हाट? People will judge you regardless of if you are doing right, wrong, cringe, uncringe, anything. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एंड ये होता है भाई। मैं यहाँ पे बैठ के भी मैं पढ़ रही होती, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मेरा ये यूट्यूब चैनल नहीं था, आई एम नॉट डूइंग ऑल ऑफ दीज एक्स्ट्रा थिंग्स जो मैं भी कर रही हूँ, कम से कम 5-6 चीजें मैंने छोड़ दी हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, स्टडिंग। कोई अभी आके मुझसे कह देता, अरे अनाया शी इज सो बोरिंग, वो तो सिर्फ पढ़ती रहती है, और अभी मैं सब इतनी सारी चीजें कर रही हूँ, वो अनाया शी इज सो क्रिंज, वो तो इतना सब कुछ करती रहती है। तो किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में पीपल विल मेक जजमेंट्स ऑन यू, वो अपने जजमेंट्स आप पे देंगे, वो अपनी इनसिक्योरिटीज को आपके ऊपर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो मैंने देखी है। आई वाज गिविंग अ स्पीच, इट वाज अ क्लास स्पीच, और कुछ टॉपिक हमें बताया गया था, इट वाज समथिंग अराउंड क्लास 10th में, आई गेस दिस इज टॉपिक इन बायोलॉजी। वी हैव टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ की ब्लड कहाँ से कौन सी आर्टरी से किधर से होके फ्लो करता है, एंड कैसे बॉडी में सप्लाई होता है, एंड कैसे बैक टू द हार्ट, एवरीथिंग। तो मैं वो एक्सप्लेन कर रही थी, आई हैड दिस पोर्शन, मतलब हर सबको ये टॉपिक दे दिया गया था, सो दिस वाज इन माय पार्ट, तो मैं इसको याद करी थी, एंड देन इट वाज माय टर्न, बिकॉज ए नाम से हो तो ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि सबसे पहला ट्रायल आपका ही होगा। तो आई गेस उस दिन मेरे आगे के फ्यू रोल नंबर्स वर एब्सेंट, तो सेकंड थर्ड रोल नंबर मेरा ही जो थी, मैं प्रेजेंट थी। तो आई वेंट देयर, आई गिव अ वंडरफुल स्पीच, फिर सब क्लैपिंग वगैरह हुई, आई केम बैक टू माय सीट एंड आई overheard few classmates of me saying, oh, she speaks, how can she speak in front of class? एंड आई वाज लाइक, आर यू किडिंग मी? बिकॉज ठीक है, चलो आप क्लास में एक्स्ट्रा बातें कर रहे हो तो वो समझ में आता है, बट यू आर जजिंग मी ऑन द बेसिस कि मैंने क्लास में बोला, एंड दैट टू जो टीचर ने मुझे दिया था, फिर उनका रोल नंबर आया, उन्होंने कुछ बोला नहीं, सॉरी मैम, एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, बिल्कुल जीरो पर्सनालिटी। जब लोग आपको कहें कि आप ज्यादा बोलते हैं, आप ये काम करते हैं, आप ये काम नहीं करते हैं, आप ऐसे क्यों करते हैं, आप वैसे क्यों करते हैं,
they are simply projecting their insecurities on you, and that should not bother you, because एक सेंस ऑफ जेलेसी होता है कि ये इंसान हमसे ये चीज बेटर कर रहा है, ये इंसान हमसे ये चीज एक्स्ट्रा कर रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको अपने लेवल में लाने के लिए इस इंसान को खींचो, इस इंसान को नीचे खींचो ताकि ये हमारे सेम लेवल पे हो जाए, बिकॉज राइट नाउ दिस इज हियर, तो वो इंसान इसको खींचता है कि नीचे आ जाओ भाई, हमारे लेवल पे आ जाओ, तुम्हें इतना अच्छा करने की जरूरत नहीं है। एंड ऐसे लोग जो आपका पैर पकड़ के खड़े रहते हैं कि बिल्कुल आपको पूरी जान लगा देते हैं आपको नीचे करने अगेन, बट इट्स इन योर विल कि आप आगे बढ़ते हैं या यू आर जस्ट लुकिंग बैक एट देम। ओके, एम्ब्रेसिंग इंडिविजुअलिटी। कितनी बार होता है कोई इंसान किसी पर्टिकुलर चीज में अच्छा होता है, कोई इंसान किसी पर्टिकुलर चीज में अच्छा नहीं होता है। जब हम किसी चीज में अच्छे होते हैं, हमें उस चीज को एज अ वेपन यूज करना चाहिए, हम उस चीज को अपने विल में यूज करना चाहिए, ना कि अपने अगेंस्ट। अगर आई एम गुड एट सिंगिंग, तो जितने भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ऐसी जितनी भी चीज होंगी जिसमें शायद मेरी सिंगिंग स्किल्स का अच्छा यूज हो सकता है, आई कैन लर्न समथिंग, आई कैन गेन समथिंग आउट ऑफ इट, या कोई कॉम्पिटिशन है, सो आई वुड ट्राई कि मैं उस चीज में जाऊं, rather than thinking okay people of my class will think I'm cringe, my friends will think I'm cringe. When you're doing something and your friend thinks that you are doing something cringe, honey, those are not your friends, they are just people, they're just snakes with human heads. बहुत नागिन एग्जाम्पल दे दिया, but you got my point right. We like to call the fake friends snakes, so मैंने just एक example दे दिया. I feel like God has given you this body, everything. There is a skill, there is something that you are better than the 50%, I would say. Because 50% को वो चीज आती नहीं है, 50% से you are better, so definitely use that thing in your will. And I feel like हम individuality को neglect कर देते हैं. We just focus on the main thing. और जब हम उस main thing के अलावा कुछ करना चाहते हैं, then we are considered to be cringe. And as I said in the thumbnail, that cringe is the key. Because if you won't try something new, something different, something out of the box, something that the crowd is not doing, you won't know your maximum potential. अगर आज से 5 साल पहले मुझसे कोई बोलता ना, you will be doing this और ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब हो रहा होगा, so I would just smile at that person and be like, यार तुम्हें क्या पता है, and I would just laugh and go. But now when things are working in my favor, when I have all the resources that I want to have, when I have touch wood everything which I'm very grateful of, and I feel like why not, मैं क्यों नहीं करूं। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सक्सेसफुल हो जाते होगे तो लोग कहेंगे यू नो दैट पर्सन वाज सेम इन माय स्कूल, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो कि अरे यार ये तो सेम देखना हमारी जैसी क्लास में पढ़ता था, हमारे जैसा था, आप देखो इसका क्या हाल हो रहा है। पीपल विल पुल यू बैक किसी भी सर्कमस्टांसेस में, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। हम सबकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे सेल्फ से रिलेटेड कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, बट जब हम उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स कि अरे मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा, या मेरे से तो ये हो ही नहीं। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ मी, 10th क्लास में आई वाज अमंग ऑफ द किड्स जिसको सब स्कूल में जानते थे, सो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज पीपल हैव आई ऑन मी, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम ईटिंग, व्हाट आई एम पोस्टिंग, व्हाट आई एम वेयरिंग, एवरीथिंग, सो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट how I am presenting myself to the people, presenting myself to everyone. So I just wore this coat of being famous, and I just thought that I can't do this thing because this won't match my current personality, and people will think that this is so uncool. And that thing was just this, starting my YouTube channel. Kid you not, ये मेरा चैनल कम से कम आज से 1-2 साल पहले से चल रहा होता, बिकॉज दिस माइक, दिस रिंग लाइट, दिस ट्राइपॉड विच आई एम शूटिंग ऑन, ये सब चीजें मेरे पास कम से कम 1-2 साल से पड़ी हुई हैं, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि भगवान की आकाशवाणी होगी और मुझे बताया जाएगा कि दैट यू शुड डू समथिंग दैट विल मेक यू फील हैप्पी एंड नॉट केयर अबाउट अदर्स। हम अपने आप को इतना बॉक्स में रखते हैं कि ओके दिस इज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी दैट वी हैव टू शेप आवरसेल्व्स, हम ऐसा करेंगे तो वो लोग कुछ सोचेंगे, वो लोग हमें जज करेंगे, वो लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, दे विल गॉसिप अबाउट अस। यू वॉन, यू लिटरली वॉन, because I love when people talk about me, and I love to misguide them. कोई मुझसे पूछना चाहना है, I listened about you that you are doing this and that. I'm like yeah, I'm doing this and that. और फिर मैंने किसी इंसान को कुछ और बता दिया, फिर वो आपस में बैठ के लड़ रहे हैं कि यार उसने तो मुझे ये बताया, उसने तो मुझे ये बताया। And that was my initial goal, that I want to be relevant among people. I want maximum number of people to talk about me. I don't care if it's good or bad. It is a part of marketing. It's a part of personal branding that I'm doing, and it has been working great ever since.
finding your tribe. When I was with those kind of people जिनको cool नहीं लगता था ये सब करना, I stopped making videos. 10th class में तो मैंने बिल्कुल ही नहीं बनाया because of my boards. और फिर 11th में भी just went by. 12th में I just got some होश की भाई कुछ तो करना है, ये तो करना ही था ना. This was a part of the plan. You can't just stop dreaming about it. And I feel like जब आपको कोई चीज बार बार अपनी तरफ बुला रही हो, that you should just give it a try. And this is my way of giving a try to YouTube. I don't know if it work in 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, or it will never work, or it will work one day when I will stop uploading videos. I don't know. I don't know the future because you never know what people will like. एक दिन में कुछ चीज वायरल हो जाती है, दूसरे दिन ही वो इंसान ही गायब हो जाता है पूरे इंटरनेट से कि कोई ऐसा इंसान भी था. Like there are multiple examples. But when you are with those kind of people जो आपके ड्रीम्स में आपको सपोर्ट करते हैं, rather than calling you out, rather than making faces, rather than आपको cringe बोलने से वो आपको सपोर्ट करते हैं in the whatever decisions you make, इतना मोटिवेशन मिलता है उस चीज से. I have this one friend and I will scream on top of my lungs because she has been my biggest supporter. I would say no one knows about this damn YouTube channel. I guess अभी थोड़े बहुत लोगों की फीड्स पे आके उनको पता चल गया that I am doing something, but फिर भी अभी काफी कम लोग हैं जिन्हें इस चीज के बारे में पता है. But that one girl stood by my side ever since. मतलब मैंने उसे बताया and she always supported me, and you need to find those kind of people. She's studying for NEET in Kota. We are very far away. हम literally साल में 2 बार मिल पाते हैं. And you know, constantly being on calls, जो मैं परेशान हूँ तो मुझे समझा रही है. Having the right kind of people with you is very important. आई नो आजकल बहुत सब लोग अकेले हैं. मैंने पिछली वीडियो में भी बात की, व्हाट इज दिस क्राइसिस ऑफ पीपल स्टार्टेड बीइंग अलोन. बट आई फील लाइक जब ऐसी दुनिया में यू फाइंड सम गुड पीपल, जस्ट होल्ड ऑन टू देम, stick on to them and just don't let them go. And you know, she knows nothing about this YouTube, this everything. She wants to become a doctor. She's studying biology there. She wants to give her exam. She wants to give NEET. उसका ये creative field से कोई लेना देना नहीं है. She's a very studious student, but still she supports me because I want to do something. Like because I have this aspiration, you know, that I like recording videos. I like to interact with people. I like to be known by people. So वो मुझे इस चीज में support करती है. So I feel like मैं बहुत ऐसे, you know, क्या कहना चाहिए उसे, बहुत सी चीज का फ्लेक्स करूंगी और फ्लेक्स करती रहूंगी बिकॉज रियल फ्रेंडशिप्स आर नॉट एवरीवेयर. द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग सो मच एग्जांपल ऑफ स्कूल एंड यू नो कोचिंग्स एटसेट्रा बिकॉज आई फील लाइक मेरी एज ग्रुप वही है और मेरी जो ऑडियंस है उनकी भी एज ग्रुप शायद वही होगी, तो यू नो दैट वुड बी मोर रिलेटेबल. बट ऐसी कोई बात नहीं. दीज टॉपिक्स, दीज पॉइंटर्स आर अप्लाइड इन एवरी फील्ड इन वट एवर यू आर डूइंग, कॉलेज, ऑफिस. बिकॉज आई रियली डोंट नो काइंड ऑफ पीपल विल वॉच दिस वीडियो बिकॉज हर टाइम एज का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है. कभी 13+ देख रहे हैं, कभी 18+ देख रहे हैं, कभी 32+ देख रहे हैं. सो आई रियली डोंट नो कि वीडियो कौन सी एज ग्रुप के पास जाने वाली है. रिमेंबर द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग दैट यू वांटेड टू डू ईगरली जस्ट बिकॉज आपको लगा कि लोग आपके बारे में कुछ कहेंगे, लोग आपको क्रिंज समझेंगे, लोग समझेंगे दैट यू आर सो अनकूल. Being cringe really gives you the space to gain confidence. It's been 2 years since I've spoken on stage, but you know, recording through these videos, this improves my speaking skills कि मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, etc. Although this is not scripted, हल्के हल्के मैंने कुछ notes बना रखे हैं, but this is not something कि जो मैंने एक एक word मैं plan करके बोल रही हूँ. This is something जो you know go with the flow वाली चीज हो जाती है. But I feel like this gives me so much space to evolve my brain. मैं सोच पा रही हूँ. Every week I'm reading, I'm learning about a different topic, analyzing it, making script, making video about it, shooting it, editing it. So मेरी कितनी सारी चीजें improve हो रही है सिर्फ एक चीज करने की वजह से. And I feel like आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा जब आपने कोई स्टेप नहीं लिया just because you were scared to do it. You were scared कि लोग आपको जज करेंगे, वो सोचेंगे कि आप क्रिंज है, वो सोचेंगे कि you know this is not a cool kid. Being the cool kid is the worst label, a worst tag जो आप अपने ऊपर लगवा सकते हो. और मैंने लगवाया और मेरे को उसका बहुत रिग्रेट भी है बिकॉज आई वाज लाइक इतना कुछ फायदा नहीं है. सी यू वांट टू बी फेमस इन स्कूल, ठीक है, मैं समझती हूँ सबके एस्पिरेशंस. ओके वी वॉक इनटू द कॉरिडोर्स एंड पीपल आर टर्निंग हेड्स टू लुक एट यू. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. बट उसकी वजह से जो प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है दैट यू वांट टू टेक एवरी स्टेप एकदम यू नो फूक फूक के, तो वो चीज बहुत मुझे बहुत खराब लगी. लाइक यार मैं ठीक इनविजिबल हो जाना चाहिए, बट मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है. यू नो आई एम वेरी आउटस्पोकन, अपफ्रंट, और हर कोकरिकुलर में तो मेरे से तो वो आई कांट यू नो. And there's this one thing which I feel absolutely crazy about is being confident when you are wrong. I'm a kind of a person pro argument hater, if it's a word even, I don't know. But मुझे लड़ाई करने में बहुत मजा आता है. Verbally, physically तो अब काफी साल हो गए नहीं करी.
there's another level of dopamine hit you're getting when you are wrong and when you are कन्विंसिंग दैट पर्सन जो सही बोल रहा है भाई कि आप गलत हो मैं ठीक हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस आपसे क्या क्या करा सकती है नहीं। Doing the cringe things will really make you come out of your comfort zone because I feel like हम लोग बहुत कंफर्टेबल होना पसंद करते हैं कि यार कुछ ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, सब चीजें चल तो रही हैं, पढ़ाई हो तो रही है, ये हो तो रहा है, कॉलेज मिल जाएगा, जॉब कर लेंगे, क्या है, कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते बिकॉज पीपल विल थिंक यू आर क्रिंज, नो वन विल थिंक। सच में आप जितने लोगों की परवाह करते हो ना, लोगों को अपना खुद का कुछ हाल नहीं है तो वो आपके बारे में तो क्या ही सोचेंगे। एंड आई फील है कि कोई शायद ऐसा मेरे पास कोई मेंटोर, कोई गार्डियन, कोई ऐसा मेरा बड़ा भाई बहन होता जो मुझे बैठ के समझाता कि अनाया इट्स ओके, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और अभी से इतना प्रेशर अपने ऊपर मत लो दैट यू नो पीपल वोंट थिंक दैट यू आर कूल, और दीज डिफरेंट टैग्स जो आप अपने ऊपर लगा लेते हो। स्कूल में तो काफी ज्यादा ये चीज ग्रुप्स बन जाते हैं और ये सब हो जाता है, एंड व्हेन यू आर समवेयर इन द आई ऑफ पीपल वो आपके ऊपर जजमेंट्स पास करेंगे नो मैटर व्हाट, तो उस चीज से तो आप बच ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि वो बाद में कुछ आपके बारे में बोले, पहले ही बोल रहे हैं तो यू नो हैविंग थिक स्किन। अगेन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू अ डिस्क्लेमर। आप हो सकता है अभी किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले 50 बार सोच रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्या ये सही रहेगा, क्या ये नहीं रहेगा। आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ केसेस कि इवन पेरेंट्स भी खुद अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, बहुत ज्यादा जज करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे बोलते हैं यू आर डूइंग दिस, व्हाट आर रिलेटिव्स विल थिंक, व्हाट आर फ्रेंड्स विल थिंक, वो लोग क्या बोलेंगे। मैं किसी फंक्शन पार्टी में जाऊंगा तो वो लोग मुझसे पूछेंगे कि व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग, और फिर मैं उन्हें ये बताऊं कि वो ये चीजें कर रहे हैं। तो आई फील लाइक हर इंसान आपके बारे में आपको आपसे अच्छा आपको नहीं जानता है, और जिस इंसान ने, अगेन साइड में स्टार्टिंग में बोला था, जिस इंसान ने आपकी लाइफ का एक सेकंड भी नहीं जिया है आप उसको पूरा अपनी लाइफ दे रहे हो, आप पूरा अपना उसको दे रहे हो कि लो भाई लो टेल मी अबाउट मी, और मेरे ऊपर जजमेंट्स पास करो ताकि मैं उसके लिए बुरा फील कर सकूं और फिर मैं उस चीज के लिए रो सकूं। मतलब आई हैव सीन पीपल ब्रेकिंग डाउन एंड क्राइंग रिवर्स ओशंस, कि मतलब जस्ट बिकॉज समवन सम पर्सन रैंडम पर्सन ऑन द अर्थ जिसको अपने बारे में वो आपके बारे में कुछ बोल के चला गया। विद दैट थिंग बीइंग क्रिंज आल्सो हैव टू हैव thick skin because you will hear a lot of things, you will definitely hear a lot of things when you want to pursue something different, when you want to pursue what the other people are not doing. You know they say escaping the matrix, और ये एंड्रयू टेट की वजह से ये चीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। एंड इफ यू रियली वांट टू डू एस्केप द मैट्रिक्स यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। आप बाकी लोगों की तरह चीजें करके डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको डिफरेंट चीज करनी पड़ेगी टू गेन डिफरेंट रिजल्ट्स। एंड विद दैट बीइंग सेड आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। I thought of not uploading and skipping this week, but I guess I won't be able to do it because मुझे पूरे week पे regret रहता है and you didn't make a video on that week. So I guess I hope you will enjoy this video, like this video, comment your favorite part or anything that you would like me to improve, or just a new topic that I should consider making video on. Share this with your family and friends, and I will see you guys in the next one. Till then, Jai Shri Ram.